Good morning, students. In the last lecture, we have discussed about different string inbuilt functions and array. Also, we have discussed about the control structures. Now, today we will be dealing with different types of array in PHP and user-defined functions. Right? So, let us start. We will see what exactly an array is. We have already seen what is and क्या रहता है array. See, generally हमने देखा है variables कैसे होते हैं. A variable can store a single value at a time. But if there is a need for you to store many values, so instead of making different variables, what we will do, we will create an array, and in that array you can store all these values. Right? We have seen how does an array look and how it stores the value. So let us see what are the different types of arrays in the PHP and how do they work. How do we refer to those all stored different values in an array, right? So an array is a special variable which can hold more than one value at a time. You have already seen. You can imagine it as a stack, and in that stack there are different compartments where you can store your values. The array stores multiple values in a single variable. So only हमने एक variable declare किया array वाला, and you can store multiple values in that variable. So there is no need to have or declare different variables. In a single variable that is an array, you can store multiple values, right? So what is the syntax to create an array? See, you have to create a variable only. So variable अगर लेना है तो क्या लेते हैं हम? Dollar, and you give some name to that variable. So currently I have given name to a variable is a. Okay. Now generally we say equal to 10, मतलब ये 10 value उस array इस variable a में जाएगी. Now we have to assign an array to this variable. मतलब ये जो a है variable, इसको हमको अभी normal variable ना रखते हुए उसको बनाना है array. तो अगर हमको array बनाना है, if we want to create an array, we make use of an inbuilt function array. See here you can see function कैसे रहता है, function का नाम and there is a bracket, opening bracket and closing bracket. वो भी कौन से type का, round bracket. So if you encounter such type of bracket, generally those are the functions. Okay, so this array is an inbuilt function. Inbuilt function मतलब क्या है, already इसका काम जो रहेगा वो already decide किया गया है PHP ने. हमको क्या करना है, सिर्फ उसको यूज करके उसको काम बताना है. So if you want to use any inbuilt function, we just need to call it. So here you can observe I am calling this function. Now when I'm calling this function, I need to give it some values which I need to store into that array. ठीक है, तो ये जो values हम देंगे ये कैसे कैसे देंगे हम ये देखेंगे. Before that, in the right side you can see there is a diagram. So first concentrate on the numeric array. Generally imagine कि ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है और ये जो वैल्यूज दिख रहे हैं उसमें हम हमारी वैल्यू स्टोर करते हैं. तो अगर मैंने पहली वैल्यू दी है 10, so it will be placed here at the 0th position. So the 0 index will have value as 10. Then I want to save suppose 35. 35 अगली वैल्यू मुझे एरे में डालनी है, तो भी अभी नेक्स्ट इंडेक्स के पास जाके उसका खाली जो बॉक्स है उसमें मेरी वैल्यू पड़ेगी. तो मेरा जो 0th पोजीशन पे क्या था 10, वैसे ही फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएगी 35. Likewise it goes on storing the value at the different index. तो ये जो नंबर्स है 0 1 2 3, these are the index numbers of that particular array. तो मुझे अगर कोई भी वैल्यू को यूज करना है तो I will use this index to reference this value or to access this value which are stored in the array. Okay, so in the PHP there are total 3 types of arrays, from which the 2 types these are not there for your current year because due to COVID they have reduced the syllabus of IT, in which associative and multidimensional array are not kept in your syllabus. So we will be only focusing on this index type of array. Okay, and whatever we have seen up till now the array concept, we have used this index array only. Index मतलब क्या है, उस array को index कहते हैं 0 1 2 3, and generally this indexing starts from 0, right? अभी नीचे देखो कि इंडेक्स एरे मतलब क्या है, द एरे विद द न्यूमेरिक इंडेक्स.
Obviously 0, 1, 2, 3 are all numbers, but there are also a type of array which is called as associative array, जिसकी जो इंडेक्सिंग नंबर होते हैं वो ना नंबर है, उसको बोलते हैं कीज. एंड दिस हियर यू कैन सी इन द बिलो array, that is the associative array. वैल्यू वैसे की वैसी ही है जिसमें हम वैल्यू डालेंगे, बट इनको हम जब रेफरेंस करेंगे तो उनको हम सपोज ए इज माई वेरिएबल नेम, तो ए स्क्वायर ब्रैकेट में 0 ना डालते हुए मैं डालूंगी ए, कैपिटल ए. तो वो क्या करेगा, मुझे इस ए कंपार्टमेंट में जो भी वैल्यू है वो रिटर्न करेगा. दिस इज हाउ एन एसोसिएटिव एरे वर्क्स. बट हमारे करंट सिलेबस के लिए सिर्फ इंडेक्स एरे है. आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर. नाउ we will see how does an index array work. So in the right side you can see there is an array which is a special type of variable where you can store multiple values. So which type of value are we trying to store in that array? Now this time we are not storing any number, we are storing strings, right? We are storing string, and it is of what? These are the subject names in English, Hindi, Marathi. So how many variables, how many values you are storing into that array? There are 3 values. पहला वेरिएबल कहाँ जाके स्टोर होगा, या पहली वैल्यू कहाँ जाके स्टोर होगी, ऑन द इंडेक्स नंबर 0. वो भरने के बाद वो चला जाएगा इंडेक्स नंबर 1, जिसमें अगर कुछ न्यू वैल्यू डालनी है तो वो इधर आएगी. अगेन नेक्स्ट अगर कुछ नया वैल्यू डालनी है तो इट विल गो टू इंडेक्स नंबर 2 एंड इट विल पुट दैट वैल्यू इन द एरे. ठीक है. So now you can see how the syntax is given. First thing and very important, the index always start with 0. Never forget this. Index हमारा 1 से start ना होते हुए किसी से start होता है, 0 से start होता है. So see how do we declare a array. So variable का नाम, obviously we are creating a variable, so dollar sign has to be there. And we have already seen if you want to create array you have to make use of inbuilt function, that is the array. और इस राउंड ब्रैकेट में हमको वो सारी वैल्यूज देनी है जो हमको array में डालनी है. ठीक है. तो अगर मुझे इंग्लिश, हिंदी, मराठी यहाँ पे डालनी है तो हाउ विल बी माई सिंटैक्स? डॉलर ए इक्वल टू array, वैल्यू 1 की जगह क्या आएगा, डबल कोट में इंग्लिश, कॉमा डबल कोट में हिंदी, कॉमा डबल कोट में मराठी. दैट्स इट. दिस इज हाउ माय array गेट्स क्रिएटेड. ओके. तो देखते हैं हम ये प्रोग्राम में क्या दिया है. नाउ अंडरस्टैंड, डॉलर सब्जेक्ट is my variable, but now it is not a single variable but I am declaring it as a array. तो मैंने क्या किया है, array वाला फंक्शन यूज किया है, और फंक्शन में मैंने क्या दिया, वो सारी वैल्यू दी है जो मुझे array में डालनी है. तो वो एक एक करके उस array में वो वैल्यूज डालता चला जाएगा. ठीक है. अभी मुझे ये जो वैल्यू स्टोर की है उनको एक्सेस करना है. आई वांट टू यूज दिस वैल्यू. तो मैं उनको कैसे यूज करूंगी, इन द नेक्स्ट लाइन विल सी. सी देखो, इको अभी डबल कोट्स में है, मतलब क्या है, वो स्ट्रिंग है. आई लाइक क्या, तो देखो यहाँ पे क्या है, डॉट. डॉट मतलब क्या है, कॉन्केटिनेशन, है ना. तो अब मुझे लिखना है आई लाइक इंग्लिश. तो हाउ डू आई रेफरेंस दिस इंग्लिश? द नेम ऑफ माय array वेरिएबल इज सब्जेक्ट, राइट. तो मुझे ये तो लगेगा. और इंग्लिश कौन से इंडेक्स पे है, 0 पे है. तो हाउ विल आई रेफरेंस दिस डॉलर सब्जेक्ट्स? ये मेरे वेरिएबल का नाम है, बट इट इज एन array, so I have to reference or access those variable using a square bracket, and in this square bracket I will give the value of that index. तो इंग्लिश का इंडेक्स नंबर क्या है, इंग्लिश का इंडेक्स नंबर है 0. तो यहाँ पे आएगा आई लाइक इंग्लिश. ठीक है. उसके बाद मुझे देना है कॉमा हिंदी. मुझे हिंदी भी अच्छा लगता है, तो यहाँ पे देखो डॉट करके वापस ये जो स्ट्रिंग है वो कॉन्केटिनेट हुई है. उसके बाद फिर से मुझे चाहिए कॉमा के बाद क्या चाहिए, हिंदी. तो मैं कैसे हिंदी को क्या रेफर करूंगी, उसका इंडेक्स नंबर है 1. तो डॉलर सब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में 1 डॉट, मतलब क्या है, अगेन इट इज कॉन्केटिनेटिंग, एंड लिखना है मुझे अगेन कॉन्केटिनेशन डॉट, लास्ट सब्जेक्ट इज व्हाट, Marathi. So this is how it will print. I like English, comma Hindi, comma sorry not comma and Marathi. ठीक है. अभी इसके बाद इको बी आर काउंट, इसमें क्या देना है, बी आर मतलब वो न्यू लाइन पे आएगा, डॉट काउंट ऑफ द वेरिएबल नेम, dot count of variable name. Now if you can observe, this count is also a type of function, inbuilt function.
जिसका काम क्या है, आप जो भी उसको पास करोगे वो उसका काउंट हमको रिटर्न करेगा। तो अभी फिलहाल हमने उसको क्या पास किया है, सब्जेक्ट का वेरिएबल पास किया है। नाउ द सब्जेक्ट इज टाइप ऑफ एरे, कितने वैल्यूज है उसके, 3, तो दिस शुड रिटर्न हाउ मच, 3। ओके, what note is given, let us see. An array can hold many values under a single line. Yes, obviously we have seen. And you can access these values by referring the index number. This is a very very important note. तो अगर आपको array का कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है तो आपको वेरिएबल का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स नंबर देना है। And mind well, the index number not starts with 1 but it starts with 0. ठीक है, तो लेट अस सी द आउटपुट। आउटपुट में क्या आएगा, आई लाइक सब्जेक्ट 0 क्या था, इंग्लिश, देन सब्जेक्ट 1 हिंदी एंड मराठी। दिस इज हाउ इट प्रिंटेड द फर्स्ट लाइन। एंड एज वी हैव सीन, काउंट के बाद हमने इनबिल्ट फंक्शन कौन सा यूज किया था, काउंट, उसमें हमने दिए थे सब्जेक्ट वाला एरे, तो इट काउंटेड इट्स वैल्यू एज 3। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल है ना। नाउ नेक्स्ट ऑफ user defined function. So first understand what exactly a function is. Why do we need to declare a function? See, suppose there is a task that you have to perform that particular block of code many times. आपको अगर एक particular block of code repeatedly use करना है आपके program में, तो it is a good practice that आप उसका एक function का नाम देके उसको एक function बनाओ, and एक बार ही उसको क्या करना है वो लिखना है, and simply call that function. You don't need to write all those lines again and again. आपको क्या करना है, उस ब्लॉक का एक फंक्शन बना दो, और उस ब्लॉक को अगर आपको कॉल करना है तो सिंपली यू कैन कॉल इट बाय इट्स नेम। व्हाई, बिकॉज नाउ यू हैव डिक्लेयर्ड इट एज अ फंक्शन। So generally a function is a block of statement which is used for repeatedly performed task. ठीक है, वन मोर, जो भी हम फंक्शन बनाते हैं या देर आर इनबिल्ट फंक्शन, हम उस फंक्शन को कब एग्जीक्यूट करते हैं, जब भी हम उसको कॉल करेंगे तभी ही वो एग्जीक्यूट होगा। इफ यू आर नॉट कॉलिंग दैट फंक्शन, आपने सिर्फ उसका काम डिक्लेयर करके रखा है, तो वो फंक्शन कभी भी बुलाया नहीं जाएगा जब तक आप उसको कॉल नहीं करते। सो दिस इज व्हाट दिस लाइन मीन, इट विल नॉट एग्जीक्यूट इमीडिएटली व्हेन द पेज इज लोडेड। मतलब अगर आपने आपका वेब पेज ओपन किया तो आपका फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होगा। वो कब कॉल होगा, जब आपने कोडिंग में उस फंक्शन को उसके नाम से बुलाया है, राइट। So, along with the built-in functions of PHP, we can also create our own functions. The built-in मतलब क्या है, PHP ने कुछ ऐसे functions खुद बना के रखे हैं जिसको उन्होंने काम ऑलरेडी देख के रखा है कि ये फंक्शन ये काम करेगा, है ना। वी हैव ऑलरेडी सीन स्ट्रिंग फंक्शन कि हर एक फंक्शन का कुछ काम है। अभी हमने काउंट फंक्शन देखा, तो इनकी जो काम है वो ऑलरेडी उन्होंने डिफाइन करके रखे। बट अगर हमारे प्रोग्राम में कुछ अलग रिक्वायरमेंट है कि हमको हमारे अकॉर्डिंग वो फंक्शन काम करना है, तो हम उसके क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। मतलब हमने बनाया हो फंक्शन हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो अगर ऐसी केस है तो द सिंटैक्स इज सिमिलर लाइक जावास्क्रिप्ट। हमने जावास्क्रिप्ट में भी यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है। कैसे बनाया है, यू नीड टू मेक यूज ऑफ दिस कीवर्ड दैट इज फंक्शन स्पेस, फंक्शन का नाम आपको देना है, एंड देयर हैज टू बी राउंड ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और इस कर्ली ब्रेसेस में आपको उसका काम बताना है कि उसने क्या काम करना चाहिए। ठीक है, तो योर कोड टू बी एग्जीक्यूटेड में आप उसको जो भी लाइंस आपको उसको काम करवाने लगाने हैं वो सारे उधर देंगे आप। ठीक है, सो माइंड वेल, whether when you are declaring a user defined function, you have to use this keyword function and then you have to give a proper function name. सपोज मेरे फंक्शन का नाम, मतलब मेरे फंक्शन का काम है एडिशन ऑफ टू नंबर, तो आई विल गिव नेम एज फंक्शन एडिशन एंड राउंड ब्रैकेट। ठीक है, हम बीच इधर अंदर लिखेंगे, सपोज मैं 3 वेरिएबल लूंगी, $a, $b, $c। सो $c to $a plus $b। Okay, I hope it is clear. So let us see with an example. So now we've already seen how do we declare a function. Declare मतलब वो क्या काम करेगा वो लिखना है। तो the keyword that is the function keyword, उसके बाद आता है
फंक्शन का नाम, यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या दिया है, राइट मैसेज। फंक्शन का नाम क्या दिया है, राइट मैसेज, राउंड ब्रैकेट ओपन राउंड ब्रैकेट क्लोज। और इस पैरेंथेसिस में मैं दूंगी कि वो फंक्शन क्या काम करेगा। तो मेरे फंक्शन में क्या काम मैंने उसको अलोकेट किया है, इको। इको मतलब क्या, उसको प्रिंट करना है जो भी मैं दूंगी डबल कोट्स में। तो डबल कोट्स में हमने क्या दिया है, दिस इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, अभी ये जो लाइन का कोड है, ये 3 लाइन का, मतलब सपोज एक ही लाइन है एक्चुअली, बट अंडरस्टैंड द पार्ट विच आई हैव हाईलाइटेड will not get executed. Why? Until and unless some event is occurred. मतलब ये जो फंक्शन है, ये मैंने उसको काम दिया है, बट जब तक मैं उसको बुलाऊं ना, वो उसका काम नहीं करेगा। तो here in you can see that write message round bracket open close and semicolon, मतलब I am calling the function now. क्या हो रहा है, आई एम कॉलिंग द फंक्शन। सो वो काउंट, मेरा जो कर्सर है या कंट्रोल है कहाँ जाएगा, इस फंक्शन में जाएगा एंड इट विल डू इट्स वर्क। ठीक है, तो आउटपुट में क्या आएगा, दिस इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। दिस इज हाउ अ यूजर डिफाइंड फंक्शन वर्क्स। नाउ अभी तक हमने सारे सिंपल फंक्शंस देखे थे कि जिसमें हमने कुछ भी वैल्यू नहीं पास की। अभी अगर ऐसा केस है कि हमको फंक्शन में कुछ वैल्यू पास करनी है, इफ देयर is the case that we have to pass a particular value to a function. So such type of is called as the function with an argument. ठीक है, function with an argument. So let us see how to create a function with an argument. Generally, the information can be passed to a function through arguments. मतलब अगर आपको function को कुछ value pass करनी है, तो आपको arguments देने पड़ते हैं। argument मतलब ऐसा कुछ बड़ी चीज नहीं है। These are the simple variables only. ठीक है, अभी ये सब आर्ग्यूमेंट्स है वो देने का है हमको। तो हमको फंक्शन के नाम के बाद जो राउंड ब्रैकेट बनाए थे, वहां पे हमको उस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स पास करने होते हैं। ठीक है, तो लेट अस सी विद एन एग्जांपल। तो नीचे गए एग्जांपल में देखो ये आर्ग्यूमेंट्स क्या दिए हमने, द वन विच आर शोन इन पिंक कलर, रोल नंबर कॉमा नेम। दीज are the values or these are the arguments which I am passing to the function. अब तक हमने जो भी फंक्शन देखे, सी दिस इज द PHP कोड, इसमें हमने फंक्शन कौन सा बनाया है, स्टूडेंट फंक्शन बनाया है, राइट। हमने क्या देखा कि फंक्शन नेम देने के बाद हम सिर्फ राउंड ब्रैकेट देते थे। अभी आप नया देखोगे कि हम उसको वेरिएबल भी पास कर रहे, आर्गुमेंट भी पास कर रहे। तो व्हाट आर दिस वेरिएबल, डॉलर रोल नंबर एंड डॉलर नेम। ठीक है, इसका काम क्या है, इको रोल नंबर। यहाँ पे देखो डॉलर रोल नंबर मतलब उसमें करंटली जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा, एंड नेम इज डॉलर नेम। डॉलर नेम मतलब करंटली इस नेम में क्या वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। ठीक है, अभी डेफिनेशन आपको समझ में आया। अभी अगर ये फंक्शन को हमको यूज करना है तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको इस फंक्शन को बुलाना पड़ता है। तो हाउ डू वी कॉल अ फंक्शन, वी कॉल इट बाय इट्स नेम, राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। ये अब तक हमने कॉलिंग का देखा था, बट नाउ वी आर स्टडीइंग हाउ टू कॉल अ फंक्शन गिविंग आर्गुमेंट टू इट। तो अभी हमने उसको कॉल किया है और उसको हमने वैल्यू भी पास की है। क्या पास की है, 1 एंड डबल कोट्स में अश्विनी। तो अभी करंटली इस रोल नंबर में क्या वैल्यू है, 1, और नेम में क्या वैल्यू है, अश्विनी। तो जब भी ये प्रिंट करेगा पहली बार, तो क्या प्रिंट करेगा, रोल नंबर इज 1 एंड नेम इज अश्विनी। ठीक है, PR मतलब जो भी इसके आगे आएगा वो न्यू लाइन पे आएगा। ठीक है, ये लाइन क्लियर है। इसके बाद मैं दोबारा इस फंक्शन को बुला रही हूँ, एंड नाउ दिस टाइम आई एम पासिंग द value or the argument as 2 and Raj. Now when I am calling this function, this roll number no more consist of 1 but it will consist of 2, and this name will consist of Raj. Why? Because I am passing the arguments here. तो सेकेंड टाइम जब प्रिंट होगा तो रोल नंबर इज, ये क्या आएगा, 2 आएगा, एंड नेम इज क्या आएगा, राज। सिमिलरली थर्ड टाइम में क्या पास कर रही हूँ, 3 एंड सोनम। सो द थर्ड टाइम इट विल प्रिंट रोल नंबर इज 3 and name is Sonam. So let us see the output of this code. Okay, the output is not given. So I'll tell you the output. कैसे आएगा, roll number is 1 and name is Ashwini. Roll number is 2 and name is Raj. And similarly roll number 3
and name is Sonam. The output will be like this. Okay, this same program is given in your textbook. You can check the output, or else when there is a live session we will be discussing about the output. It is simple. Okay, next, now returning value. So now see, अभी यहाँ पे हमने जो भी फंक्शन की है वो फंक्शन उसका उसका काम करके उधर छोड़ जाता है, बट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए हमको रिटर्न कैसे करना है वो, so we'll see how to return a value. PHP कोड है, फंक्शन क्या दिया है हमने, फंक्शन का कीवर्ड है सम। अभी यहाँ पे देखो व्हाट टाइप, लास्ट इसमें देखा हमने कि कैसे वैल्यू पास करने हैं, तो इंट $x कॉमा इंट $y, मतलब इट विल टेक द इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू ऑफ x एंड इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू y। ठीक है, अभी काम क्या करना है कि नया वेरिएबल z जो है उसमें x और y के एडिशन डालनी है। ठीक है, इसके बाद z का जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं, ये हमको किसी को रिटर्न करना है। तो किसको रिटर्न करना है, जो भी उस फंक्शन को, इधर तक क्लियर है। अभी उसका एग्जीक्यूशन देखो, पहला लाइन क्या है, इको डबल कोट्स में 5 + 10, ये हम कुछ उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ हम प्रिंट कर रहे हैं कि 5 + 10 इक्वल टू क्या आएगा। ये अंडरस्टैंड, दिस इज अ स्ट्रिंग, ये कोई इक्वेशन वगैरह नहीं है क्योंकि इसको डबल कोट्स में दिया है। ये हमको सिर्फ दिखाने के लिए दिया है कि 5 + 10 कितना। ओके, डबल कोट्स के बाद डॉट दिया है, डॉट मतलब कॉन्केटिनेशन। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को यहाँ बुला रहे हैं, तो ये क्या होगा, सम इधर चला जाएगा फंक्शन के पास। तो अभी x में कितना वैल्यू रहेगा 5 एंड y में कितना वैल्यू रहेगा 10। ठीक है, तो z में अभी क्या आएगा, 5 + 10 कितना हो जाएगा 15। तो z में 15 आया है, तो इधर क्या होगा, वो रिटर्न z कर रहा है, मतलब किसने हमको बुलाया, सम फंक्शन को किसने बुलाया या यहाँ पे बुलाया, तो वो वहां क्या रिटर्न करेगा, z की वैल्यू। तो यहाँ पे आएगी वैल्यू 50। ठीक है, उसके बाद अगेन कॉन्केटिनेशन, br मतलब क्या है, न्यू लाइन पे जाए। सेम अगेन दिस इज आल्सो अ स्ट्रिंग, इट इज नॉट एन इक्वेशन, जस्ट टू डिस्प्ले। हियर अगेन वी आर कॉलिंग अ फंक्शन दैट इज 7,13, मतलब वापस हम इधर जाएंगे, इधर अभी x कितना हो गया 7, y कितना हो गया 13। ठीक है, z में क्या आएगा, 7 + 13 दैट इज 20। तो z में जो वैल्यू है वो हमको रिटर्न करनी है। किसको रिटर्न करनी है, जिसने बुलाया। कहाँ बुलाया है, इधर बुलाया है, तो इधर उसकी वैल्यू क्या आएगी, 20 आएगी। अगेन बी आर, नेक्स्ट अगेन सेम इट विल रिपीट। यहाँ पे क्या आएगा, सम 2,4 मतलब क्या है, एंड में क्या आएगा, रिटर्न 6, सो इट विल प्रिंट 2 + 4 is 6. So this is how the returning value of function is done. मतलब रिटर्न स्टेटमेंट में आपको लिखना है कि क्या रिटर्न करना है। तो हमको क्या रिटर्न करना है, z की वैल्यू रिटर्न करनी है, दैट इज वाई वी रोट $z। ठीक है, so this is how a return value we receive from the function using what, the return statement. Then we also saw how to pass the arguments to a function. We saw how to create a user-defined function. So this is all we have seen in today's lecture. Then we have seen types of array. So the next lecture we will be discussing about the form handling. तो form क्या रहता है हमने already देखा है, HTML use करके हम form बनाते हैं, और in the JavaScript we had seen how to link the JavaScript and HTML. In this lecture, the upcoming lecture, we will see how to handle the form and PHP together. Okay, so that is all for today's lecture.